یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30 اور بنگلہ دیش میں رات کے 9 بجے ہیں. ZBC سربین سے میں ہوں جاوید چودھری. دھمکیوں اور فوجی مشقوں کے بیچ چند حوصلہ افزا بیانات. عمان کی سالسی میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور میں کیا ہوا؟ Good progress has been made compared to the last meeting, and we now have a clear path ahead, which I think is positive. جنیوا میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور شروع. روس کے یوکرین پر تازہ حملے. Even on the day when new formats of talks begin in Geneva, trilateral and bilateral with the United States, Russia responds with a strike. This very clearly demonstrates what Russia wants and what it is focused on. مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں فلسطینی اتھارٹی اور اسرائیل کے درمیان اختیارات کی تقسیم نازک مرحلے میں. بازار اور شہر کے زیادہ تر حصوں پر کنٹرول فلسطینی حکام کا ہے، لیکن اسرائیلی ملٹری چیک پوائنٹ کی دوسری طرف اسرائیلی فوجی فلسطینیوں کے ساتھ رہنے والے یہودی سیٹلرز کی حفاظت کرتی ہے. انڈین سیکرٹری خارجہ کی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سربراہ ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ملاقات. افغان طالبان کا سعودی عرب کی درخواست پر 3 پاکستانی فوجی رہا کرنے کا دعویٰ. CTD بلوچستان کی کارروائیوں میں کالعدم عسکریت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے 14 عسکریت پسند ہلاک. اراکین پارلیمان کا عمران خان کی صحت کے معاملے پر پارلیمنٹ میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان. رمضان بھی ہے، ہم اپنا جو دھرنا پارلیمنٹ میں دیا ہوا تھا اس کو ہم ختم کریں گے. پاکستان میں تہرے قتل کے ملزم کی چلتی ٹرین سے گرفتاری اور گجرانوالہ میں اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں ہلاکت. انڈیا کا ترانہ گانے پر باچا خان یونیورسٹی کے 4 طلباء برطرف. جانیے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کو غلاف کعبہ کے ٹکڑے یعنی کسوہ کس نے بھیجے تھے، اور یہ بھی کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا ہماری صحت کے لیے مفید کیوں ہے. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی دوسری نشست کے بعد واشنگٹن اور تہران کی جانب سے تشویش کے اظہار کے ساتھ ساتھ چند حوصلہ افزا بیانات بھی سامنے آئے ہیں. مذاکراتی نشست کے بعد امریکہ کے نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی مذاکرات کچھ حوالوں سے اچھے رہے ہیں، اور فریقین نے آئندہ ایک اور اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے. جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں پر مفاہمت طے پا گئی ہے. امریکی نائب صدر JD وینس نے یہ بھی کہا کہ ایران اب بھی صدر ٹرمپ کی متعین کردہ کچھ ریڈ لائنز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے اندیا دیا کہ اس ضمن میں امریکہ سفارتی راستے پر سفر جاری رکھے گا، لیکن صدر ٹرمپ ہی یہ طے کریں گے کہ سفارتکاری کب ترک کرنی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن یہ امید نہیں رکھتا کہ معاملات اس حد تک پہنچیں گے، لیکن اگر ایسا ہوا تو فیصلہ صدر ٹرمپ کا ہوگا. I think the president has a lot of options. We do have a very powerful military. The president's shown a willingness to use it. He also has a remarkable diplomatic team. He's shown a willingness to use that too. And so دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے مذاکرات کے پہلے دور کے مقابلے میں دوسرے دور کو زیادہ مثبت قرار دیا اور کہا کہ دونوں فریق معاہدے کی ممکنہ دستاویز کے 2 مسودے تیار کر کے ان کا تبادلہ کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جلد ہی کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے، لیکن ہم معاہدے تک پہنچنے کے راستے پر ضرور چل پڑے ہیں. اراغچی نے مزید کہا کہ فریقین کے سامنے اب بھی کچھ مسائل ہیں جن پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. This does not mean that we can reach an agreement quickly, but at least the path has started. We hope that this will be done as soon as possible, and we are prepared to spend enough time on it. However, when it comes to drafting the text, the work becomes a bit more difficult and detailed.
दूसरी जानब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि उनका मुल्क इस तस्दीक की इजाज़त देने के लिए तैयार है कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। सदारती वेबसाइट पर शाया तबसरे में पेज़ेश्कियान का कहना था कि हम जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे और अगर कोई इसकी तस्दीक करना चाहता है तो हम ज़रूरी इक़दामात के लिए तैयार हैं। ताहम जहां एक जानिब जनीवा में मुज़ाकराती अमल जारी रहा, वहीं सदर ट्रंप और ईरान के रहबरे आला खामनाई की जानिब से धमकी आमेज बयानात भी सामने आते रहे। जौहरी मुज़ाकरात का आगाज होते ही ईरान के रहबरे आला आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि अमेरिका ईरान को तबाह करने में कामयाब नहीं होगा। अमेरिका की जानिब से तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजे जाने के फैसले का हवाला देते हुए खामनाई ने कहा कि ये बहरी जहाज यकीनन एक खतरनाक हथियार है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो इसे समंदर की तह में गर्क कर सकता है। چون او گفته که حرف بی‌ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم، این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون او خوشه. او اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه، تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود داره. इसी तरह सदर ट्रंप ने पीर की शब ऐलान किया था कि मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होंगे। सदारती तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा था, मुआहिदा ना करने के जो नताइज होंगे मुझे नहीं लगता ईरान उन्हें भुगतना चाहता है। ताहम उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि तेहरान मुआहिदा करना चाहता है। रूस और यूक्रेन के वफूद जनीवा में अमेरिका की सालसी में ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के लिए मिल रहे हैं। ये मुलाकात मास्को की तरफ से यूक्रेन पर हमले की चौथी सालगिरह के एक हफ्ते कबल हो रही है, लेकिन किसी बड़ी पेशरफ्त की तवक्को कम है क्योंकि मास्को अब भी यूक्रेनी इलाकों से अपने ज्यादा से ज्यादा मुतालबात से पीछे नहीं हटा। रूस के यूक्रेन पर मुज़ाकरात के दौरान भी रात के वक्त हमले जारी रहे, जिससे पहले ही तबाहशुदा बिजली के निज़ाम को मजीद नुकसान पहुंचा, जबकि दर्जा हरारत मनफी में है। स्विट्जरलैंड में वफूद की मुलाकात से चंद घंटे कबल मास्को ने एक बड़े फिजाई हमले में 12 इलाकों को निशाना बनाया। इन हमलों में 400 ड्रोन्स और तकरीबन 30 मिसाइल दागे गए, जिनमें कम अज कम 3 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन के सदर का कहना है कि ताज़ा हमले जाहिर करते हैं कि रूस अमन की कोशिशों को किस हद तक नजरअंदाज करता है। Even on the day when new formats of talks begin in Geneva, trilateral and bilateral with the United States, Russia responds with a strike. This very clearly demonstrates what Russia wants and what it is focused on. दूसरी जानिब रूस का कहना है कि उसकी फिजाई दिफाई निज़ाम ने 150 से ज़ायद ड्रोन्स को मार गिराया, जबकि एक ऑयल रिफाइनरी यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद आग की लपेट में आ गई। जिनीवा में होने वाले मुज़ाकरात की सालसी डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन की नुमाइंदगी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी रुस्तम उमरूफ और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुदानोव कर रहे हैं। रूसी वफ्द में सदर व्लादिमीर पुतिन के मुशीर व्लादिमीर मेदिनिस्की और फौजी इंटेलिजेंस के अरकान भी शामिल हैं। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन को जल्दी मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। उन्होंने पहले भी इस तनाज़े के हल में सुस्त रफ्तारी पर अपनी बेसब्री जाहिर की है। Look, so far, Ukraine better come to the table fast. That's all I'm telling you. We are in a position we want them to come. And by the way, I watched AOC answering questions in Munich. This was not a good look for the United States. याद रहे कि रूस इस वक्त यूक्रेन के तकरीबन 20% इलाके पर काबिज है, जिसमें मशरकी दोनबास के बड़े हिस्से शामिल हैं। क्रेमलिन चाहता है कि
कि यूक्रेनी बाकी इलाका भी रूस के हवाले करे, जिसे यूक्रेन ने मुस्तरद कर दिया है। कीव का कहना है कि मगरब खसूसन अमेरिका की जानिब से मजबूत सलामती की जमानतें किसी भी मुआहदे से पहले लाजमी है। ये ताज़ा मुज़ाकरात गुज़िश्ता माह अबू ज़ैबी में होने वाली सह अफ्रीकी बातचीत के बाद हो रहे हैं, जो रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान पहली मुलाकात थी। वो मुज़ाकरात किसी बड़ी पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हुए, ताहम इसके बाद कई माह में पहली बार जंगी कैदियों का तबादला हुआ। It's one of the few tangible things to come out of peace talks so far, prisoner exchanges. And though they mean the world to soldiers and their families, on their own, the exchanges fail to bring Russia and Ukraine any nearer to an agreement to end the war. मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान इख्तियारात की तकसीम एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। शहर के कुछ हिस्सों में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया का कंट्रोल है, जबकि अहम इलाकों और सिक्योरिटी मामलात पर इसराइली अफवाज की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। हालिया दिनों में सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा, चेक पोस्टों की सख्ती और नकलो हरकत पर पाबंदियों ने कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया है। मुकामी आबादी खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, जबकि किसी भी मामूली वाक़े के बड़े तसादम में तब्दील होने का खदशा भी मौजूद है। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। अल खलील में ताकत इस शहर की तरह बटी हुई है। बाजार और शहर के ज़्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल फ़लस्तीनी हुकाम का है, लेकिन इसराइली मिलिट्री चेक पॉइंट की दूसरी तरफ इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनियों के साथ रहने वाले यहूदी सेटलर्स की हिफाजत करती है। हम अल खलील के बिल्कुल वस्त में एक इसराइली फ़ौजी चौकी से गुजर कर फ़लस्तीनी कारकुन ईसा उमरो से बात करने आए हैं। वो शहर के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ यहूदी सेटलर्स और फ़लस्तीनी साथ साथ रहते हैं। यहाँ का माहौल कशीदा है। ताकत के इस नाजुक तवाज़ुन में कोई भी तब्दीली हकीकी तसादुम का बायस बन सकती है। इसराइल ने कहा है कि वो यहाँ म्यूनसिपल खिदमात फराहम करना शुरू कर देगा और इसराइलियों को पूरे मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी जायदाद खरीदने की इजाज़त देगा। ईसा के घर के बाहर एक यहूदी जोड़ा पिकनिक मना रहा है। अंदर फ़लस्तीन के लिए एक तख्ती लगी है। खिड़की से बाहर एक बड़ा इसराइली झंडा नज़र आता है। वो किसी कानूनी जवाज़ के बगैर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे थे। अब वो खुद कानून है और इसकी मौजूदा हैसियत को मकबूजा इलाकों से बदल कर कानूनी तनाज़ात में तब्दील कर रहे हैं। अब ये इजराइल का हिस्सा है जिसमें मेरे लिए कोई हुकूक नहीं है। ये मुझे शामिल किए बगैर मेरी ज़मीन पर कब्जा है। इसराइल ने यह भी कहा है कि वो मकबूजा गरब उर्दन के नाम नहाज सकाफती विरसे पर अपना कंट्रोल बढ़ाएगा। उनका कहना है कि ये माहौलियाती और आसार कदीमा के वसाइल की हिफाजत के लिए है और वो अल खलील में गार अंबिया पर मंसूबा बंदी का कंट्रोल संभाल रहा है। ये गार एक अहम यहूदी मुक़द्दस मकाम है जो मस्जिद इब्राहिमी के अंदर वाक़ है। वो आसानी से किसी भी इमारत पर ये ऐलान करके कब्जा कर सकते हैं कि ये इमारत पुरानी या कदीम है। इस मकाम पर फ़लस्तीनी हुकाम और इदारे किसी भी ऐसी चीज़ या फैसले का हिस्सा नहीं रहते जिसका ताल्लुक शहरी मंसूबा बंदी से हो। इसराइली वज़रा ने नए इक़दामात को फ़लस्तीनी रियासत के तस्वर को दफन करने के मुतरादिफ करार दिया है। यहूदिया और सामरिया इसराइल के लोगों का यहूदी वतन है और मैं तवक्का करता हूँ कि यहाँ मुकम्मल इसराइली खुद मुख्तारी हो, लेकिन इस दौरान हम कम अज़ कम निगरानी कर सकते हैं ताकि कोई माहौलियाती नुकसान न हो और हम इसराइल के लोगों को विरसे को नुकसान न पहुँचने दें, चाहे वो फ़लस्तीनी इंतज़ाम वाले इलाकों में क्यों न हो। इन कानूनी तब्दीलियों ने उन मुआहिदों को नाकारा कर दिया है जो इसराइल ने खुद अशरों पहले फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ आगे बढ़ने के लिए किए थे, और इन तब्दीलियों ने उस वाहिद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इख्तियार को ज़द पहुँचाई है जो गज़ा में हमास की जगह ले सकती है। अल खलील और मकबूजा गरब उर्दन में जो कुछ होता है वो डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा के विजन और वसी तर मशरिक़ वस्ता के अमन मंसूबे के लिए ख़तरा बन सकता है।
बांग्लादेश में 18 माह बाद मंगल को BNP की क़यादत में नई हुकूमत कायम होने के बाद इंडिया के सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री ने ढाका में जमात इस्लामी के सरबराह डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात की है। ये मुलाकात नई हुकूमत के हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान हुई। इंडियन हाई कमीशन की जानिब से एक्स पर जारी बयान के मुताबिक इंडियन सेक्रेटरी खारिजा ने डॉक्टर शफीकुर रहमान को उनके नए मनसब पर मुबारकबाद दी और कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात अवामी मुफादात से जुड़े हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने दोनों मुमालिक के गहरे सकाफती रिश्तों पर जोर देते हुए उम्मीद जाहिर की कि ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में इंडिया की पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला भी शरीक हुए, जिन्होंने नौमुंतखब वजीर आजम तारिक रहमान को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम दिया। वजीर आजम मोदी ने तारिक रहमान को इंडिया के दौरे की दावत भी दी। याद रहे कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP ने भारी अक्सरियत हासिल की थी, जबकि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात के तौर पर सामने आई है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने BBC को बताया है कि सऊदी अरब की सालसी के दौरान 3 पाकिस्तानी फौजियों को रमजानुल मुबारक के मौके पर जेल से रिहा किया गया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने दावा किया कि फौजियों को 12 अक्टूबर को जनूबी अफगानिस्तान में ड्यूरन लाइन पर तालिबान की सरकारी अफवाज के इंतकामी हमलों के दौरान हिरासत में लिया गया था। तालिबान हुकूमत के मरकजी तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमारात इस्लामिया ने इन कैदियों को दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए रिहा किया है। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान पाकिस्तानी अफवाज ने अफगानिस्तान का कोई फौजी नहीं पकड़ा। तालिबान हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान ने तमाम ममालिक के साथ मुस्बत ताल्लुकात पर जोर देने की अपनी पॉलिसी के मुताबिक रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद के एजाज में, जो कि रहमतों और मगफरतों का महीना है, और बिरादर मुल्क सऊदी अरब की जानिब से मुज़ाकराती टीम की मेज़बानी की दरख्वास्त के जवाब में इन फौजी कैदियों को रिहा किया है। पाकिस्तान ने अभी तक इन कैदियों की रिहाई पर कोई तबसरा नहीं किया है। याद रहे कि यह पहला मौका है कि सऊदी वफ्द ने पाकिस्तानी फौजियों की रिहाई के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुलकर सालसी की है। अगरचे पाकिस्तानी अफवाज पहले भी तालिबान हुकूमत के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करती रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके फौजियों को तालिबान हुकूमत ने कैद में रखा हुआ है। BBC के साथ तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की गुफ्तगू में जो बात वाज़ेह होती है वो ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात पर जोर और सऊदी सालसी का खैर मकदम है, जिसने गुज़िश्ता चंद महीनों में पहली बार एक अमली कदम आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के हुकाम का कहना है कि उनकी कार्रवाइयों में कालादम अस्करियत पसंद तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 14 अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। CTD के तर्जुमान की जानिब से मीडिया को फराहम की जाने वाली मालूमात के मुताबिक ये अफराद 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मारे गए हैं। CTD की जानिब से यह दावा किया गया है कि ये अफराद फायरिंग के तबादले में मारे गए, लेकिन आज़ाद ज़राए से उनकी किसी अस्करियत पसंद तंजीम से ताल्लुक और फायरिंग के तबादले में हलाकत की ताहाल तस्दीक नहीं हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने CTD को सराहते हुए कहा है कि उसके जवानों ने कालादम तंजीमों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। CTD की जानिब से कोयटा में मीडिया को फराहम करदा मालूमात के मुताबिक कालादम अस्करियत पसंद तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 15 से 20 अस्करियत पसंद डिघारी के इलाके से कोहे मुर्दार पहाड़ी को अबूर करके कोयटा में दरख्शां के इलाके में आए थे। वो इस इलाके में किसी टारगेट को निशाना बनाने के लिए मौके के इंतजार में थे। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए CTD के स्पेशल ऑपरेशन विंग के एहलकारों को भेजा गया। CTD के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन विंग के एहलकारों को देखते ही मुसल्लह अफराद ने उन पर शदीद फायरिंग की, जिसमें 3 एहलकार जख्मी हो गए। CTD का दावा है कि फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा, जिसमें जवाबी कार्रवाई में 8 मुसल्लह अफराद हलाक हुए, जबकि बाकी बरसाती नालों का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। CTD के मुताबिक दूसरी कार्रवाई जिला बारखान में मीरवाह के इलाके तंग खुरेड में कालादम तंजीम के मुसल्लह अफराद की मौजूदगी पर की गई। CTD का कहना है कि इस इलाके में घात लगाकर किए जाने वाले हमले में कम अज कम 6 मुबैना अस्करियत पसंद मारे गए, जबकि बाकी फरार हो गए। इन कार्रवाइयों के दौरान असला, धमाका खेज मवाद और कालादम तंजीम के झंडे भी बरामद किए गए हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हम ख्याल जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लिमान की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक़ मामलात पर पार्लियामेंट में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इस फैसले का ऐलान किया और कहा कि चूंकि रमज़ान शुरू हो रहा है इसलिए धरना ख़त्म किया जा रहा है। इस मौके पर सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की। रमज़ान भी है, हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम ख़त्म करेंगे और अगले मरहले में फिर हम इंशाल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट इक़दाम कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। पार्लियामेंट में जब हम बैठे आगे जुम्मे के बाद उन्हें बाहर निकलना था, दरवाजे बंद कर दिए गए, पार्लियामेंट को कैद खाना बना दिया गया, जेल बना दिया गया। ये एक जुर्म था, ये एक अटैक था पार्लियामेंट के ऊपर। हमारे जो MNAs थे वो लॉजेस में बंद हो गए, जो KPK के दोस्त थे वो KPK हाउस में बंद हो गए और FIR करना शुरू की गिरफ्तार करके 788 की FIR काटी गई हैं। इसको फाशिज्म नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। याद रहे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा आज यानी बुध को पार्लियामान में धरने के मुकाम से उठकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे ताकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत में शिरकत कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए राजा नासिर अब्बास का कहना था कि इमरान खान की सेहत के मामले पर उन्हें सख्त तशवीश है और इसी बुनियाद पर PTI और हम ख्याल जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज किया था। उन्होंने कहा कि इस धरने का मकसद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था जिसमें वो कामयाब हुए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी हम ख्याल जमातें जल्द ही आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर गुजरांवाला में तहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम हारून अपने ही मुबैना साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को आलाए कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में वो मारा गया। CPO गुजरांवाला डॉक्टर ग़ियास गुल खान के मुताबिक मुलजिम पर एक खातून, उसके 2 कमसिन बच्चों और एक 13 साला लड़के के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने खातून को नहर के करीब कत्ल किया, बच्चे का गला काटा जबकि 8 माह की बच्ची को गला दबाकर हलाक किया गया। मजीद ये कि खातून की बालियां उतारने के लिए उसके कान भी काट दिए गए। मुलजिम की गिरफ्तारी भी ड्रामाई अंदाज में हुई थी। वो पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस पर सफर कर रहा था जब रेलवे पुलिस ने खुफिया इतला पर शनाख्ती कार्ड चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ां उसे गुजरांवाला पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एक 13 साला लड़के के कत्ल का एतराफ भी किया, ताहम उस लड़के की लाश ताहाल बरामद नहीं हो सकी। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ेर हिरासत मुलजमान की मशकूक हलाकतों पर आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है क्योंकि हालिया अरसे में ऐसे वाक़यात में इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की बाचा खान यूनिवर्सिटी से 4 तुलबा को सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो के बाद बरतरफ कर दिया गया है जिसमें एक तालिबे इल्म को इंडिया का कौमी तिराना गाते और दीगर को उसका साथ देते दिखाया गया था। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जबरान रियाज सैयद कातिब शाह बशीर खान और मुराद खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बदअमनी फैलाने और कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की नीयत से तराना गाया और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। वाक़या 11 फरवरी को कैंपस में यूथ फेस्टिवल के इख्तिताम पर पेश आया जबकि 13 फरवरी को डिसिप्लिनरी कमेटी के इजलास के बाद तुलबा को निकालने का फैसला किया गया। जबरान रियाज ने बाद अज़ां एक वीडियो पैगाम में अपने अमल पर माजरत करते हुए कहा कि ये एक मजाक था और इनका किसी किस्म की बदनीयती का इरादा नहीं था। दूसरी जानिब मुराद खान का कहना है कि उन्हें सफाई का मौका नहीं दिया गया और उन्हें अपने अखराज का इल्म नोटिफिकेशन के जरिए हुआ। मुराद खान के मुताबिक मैंने बस जय हिंद के नारे का जवाब दिया था, अंदाजा नहीं था कि उसकी इतनी बड़ी सजा होगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, ताहम खबर फाइल किए जाने तक कोई बाज़ाबिता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दुनिया भर में मुसलमान उन दस्तावेज़ात पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं जिनसे जाहिर होता है कि मज़हब इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मुकाम यानी काबा को
ढांपने वाले कपड़े के कई टुकड़े सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए थे। अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा एप्स्टीन फाइल्स में इससे मुतल्लक क्या तफसीलात हैं और जेफरी एप्स्टीन को किसवा के ये टुकड़े किसने भेजे थे, सुनिए आज के BBC रीड्स में, जिसे तहरीर किया है ग्रेस टसोई ने और पेश कर रही हैं खतीजा आरिफ। दुनिया भर में मुसलमान उन दस्तावेजात पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं जिनसे जाहिर होता है कि मजहब इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम काबा को ढांपने वाले कपड़े के कई टुकड़े सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन को भेजे गए थे। 30 जनवरी को अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से जारी करदा एप्स्टीन फाइल्स की किस्त में सन 2017 की ऐसी ईमेल्स हैं जिनमें खिलाफ काबा, जिसे किस्वा कहा जाता है, उसके 3 टुकड़ों की खेप की निशानदेही की गई है, जिनको सऊदी अरब से कैरेबियन में एप्स्टीन के घर भेजा गया। जेफरी एप्स्टीन को किस्वा के टुकड़े किसने भेजे और पुराने किस्वा की तकसीम के हवाले से सऊदी अरब में क्या कवानीन हैं, सुनिए आज के BBC रीड्स में। तहरीर है ग्रेस सोई और फिरोज हसनी की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। सन 2014 की एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एप्स्टीन एक आदमी के साथ जमीन पर पड़े कपड़े के एक टुकड़े का मुआयना कर रहे हैं जो काबे के दरवाजे को ढांपने वाले किस्वा के सबसे ज्यादा आराइशी हिस्से से मुशाबहत रखता है। इन तफसीलात के मंजर आम पर आने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। एक्स पर एक सारिफ ने लिखा है कि जरा सोचिए कि दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम का एक हिस्सा गंदी तरीन जगह भेजा गया। एक्स पर एक और सारिफ ने लिखा कि ये देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया कि किस्वा को कालीन की तरह फर्श पर बिछाया गया। ताहम इस तस्वीर का उन दस्तावेज से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता जिनसे पता चलता है कि किस्वा के हिस्से सन 2017 में एप्स्टीन को भेजे गए थे और ये भी वाज़ेह नहीं है कि तस्वीर में मौजूद कपड़ा असली किस्वा का हिस्सा है। आगे बढ़ने से पहले ये बताती चलूं कि गिलाफ काबा को काले रंग के जिस रेशम से तैयार किया जाता है उस पर सुनहरी और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुंदा की जाती है। मक्का में मस्जिदुल हराम के मरकज में मौजूद काबा की चारों दीवारों को किस्वा से ढांपा जाता है। हर साल सैकड़ों आज़मीन इसको हाथ लगाते हैं और नए इस्लामी साल के मौके पर एक तकरीब में इसे तब्दील किया जाता है। अब बात की अमरीकी महकमा इंसाफ के आर्काइव के मुताबिक सन 2017 में एप्स्टीन के स्टाफ और अजीजुल अहमदी नामी एक शख्सियत के दरमियान ईमेल्स का तबादला हुआ जिसमें एप्स्टीन को किस्वा के 3 टुकड़ों की तरसील का बंदोबस्त किया गया। एक सब्ज रंग के टुकड़े को काबे के अंदर इस्तेमाल होने वाले कपड़े के तौर पर बयान किया गया। बैरूनी गिलाफ में इस्तेमाल होने वाला एक काला कपड़ा और इसी मवाद से बना हुआ एक कढ़ाई वाला कपड़ा, ताहम इसे इस्तेमाल नहीं किया गया था। 1 फरवरी 2017 की एक ईमेल इशारा करती है कि अहमदी कहलाने वाले किसी के असिस्टेंट ने एप्स्टीन के अमले को बताया कि वो मस्जिद के लिए काबे के कुछ टुकड़े भेजेंगे। ये वाज़ेह नहीं कि आया वो मस्जिद किसी मकाम को कह रहे थे। अब तक जिन एप्स्टीन फाइल का जायजा लिया गया है उनमें जजीरे पे किसी मस्जिद का जिक्र नहीं। ताहम अमरीकी महकमा इंसाफ की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज के मुताबिक एक छोटी इमारत मंदिर का हवाला मिलता है। ये वाज़ेह नहीं कि ईमेल्स के तबादले में इसका मतलब क्या था। ये लिटिल सेंट जेम्स जजीरे पर एक मंदिर है। ये जजीरे के जुनूबी हिस्से में सुनहरी गुंबद के साथ एक छोटी सी इमारत है। वाज़ेह रहे कि दस्तावेज में जिस मस्जिद का जिक्र किया गया है वो मक्का की मस्जिदुल हराम नहीं जहाँ पर काबा मौजूद है। दस्तावेज से पता चलता है कि ये कार्गो 4 मार्च 2017 को एप्स्टीन के पालम बीच में मौजूद घर पहुंचा और फिर इसे US वर्जिन आइलैंड में सेंट थॉमस भेज दिया गया। ये एप्स्टीन के निजी जजीरे लिटिल सेंट जेम्स से करीब है जिसके बारे में मुतादिद मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें वहां स्मगल किया गया और उनका जिनसी इस्तेहसाल हुआ। 14 मार्च 2017 की तारीख के साथ अमरीकी कस्टम के एक फॉर्म पर उस सामान को पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और पेस्टल्स करार दिया गया। 21 मार्च की एक ईमेल में एप्स्टीन के घर किस्वा के टुकड़े डिलीवर होने की तस्दीक की गई। इसके बाद अहमदी की जानिब से भेजी गई एक ईमेल में एप्स्टीन को बताया गया कि इस सियाह टुकड़े को सुन्नी, शिया और दीगर फिरकों के कम से कम 1 करोड़ मुसलमानों ने छुआ। ईमेल में बताया गया कि वो काबे के गिर्द 7 बार चक्कर लगाते हैं, फिर हर कोई उसे छूने की कोशिश करता है और वो
اس ٹکڑے پر اپنی دعائیں، خواہشات، آسوں اور امیدیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ واضح نہیں کہ آیا ایپسٹین نے کسوہ کے ٹکڑے بطور تحفہ وصول کیے یا وہ اصلی بھی تھے۔ امریکی محکمہ انصاف کے ریکارڈ کے مطابق یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ ایپسٹین کو سعودی عرب سے کوئی سامان بھیجا گیا ہو۔ 27 جنوری 2017 کو ای میلز کے ایک تبادلے میں ایک شخص جسے احمدی کا اسسٹنٹ بتایا گیا، بظاہر مسجد کے اندرونی تصاویر کی درخواست کرتا ہے تاکہ مسجد کے اندر کسی چیز کی تیاری کا کام شروع کیا جا سکے۔ اس سے پہلے ای میلز کے اس تبادلے میں ایپسٹین کے ایک اسسٹنٹ نے ایپسٹین کے گھر خیمے اور دیگر گھریلو سامان پہنچنے کی تصدیق کی۔ امریکی محکمہ انصاف کی فائلز میں ایک دستاویز میں ایک روایتی عربی اون کے خیمے اور دیگر اشیاء جیسے قالین، کافی کے برتن، کپ اور ٹوکریاں دکھائی گئیں، تاہم اس بات کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ آیا اس کھیپ میں ایپسٹین کو یہ چیزیں پہنچائی گئی تھی۔ 2 بار سامان کی ڈیلیوری جیفری ایپسٹین کو سن 2008 میں جنسی مجرم کے طور پر سزا سنائے جانے کے بعد کی گئی تھی۔ جیفری ایپسٹین نے جسم فروشی کا مطالبہ، جس میں ایک نابالغ بھی شامل تھا، کرنے کے 2 الزامات کا اعتراف کیا تھا۔ احمدی نے اس بارے میں بی بی سی کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ دستاویز میں کسی کا نام شامل ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے۔ اب بات کعبے کے غلاف کی۔ اس کی تیاری، اسے کعبے کو اوڑھانے، ہر سال تبدیل کرنے اور پرانے غلاف کے استعمال تک کسوہ کے ہر معاملے پر سعودی حکام کا کنٹرول ہے، لیکن پرانے کسوہ کی تقسیم کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں۔ بی بی سی نے اس معاملے پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سعودی حکام سے رابطہ کیا، تاہم اس رپورٹ کی اشاعت تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ حج اور عمرے کے امور کے ماہر مصنف احمد الحلابی نے بی بی سی کو بتایا کہ سونے اور چاندی کے نوشتہ جات والے حصے، جنہیں اکثر بیلٹ اور سمادی کہا جاتا ہے، ان کو صرف سعودی رائل کورٹ کے اہلکار ہی کسی کو تحفے میں دے سکتے ہیں۔ یہ حصے مسلم ممالک کے سربراہان اور حکومتی اہلکاروں کو دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ باقی کا کالا کپڑا عام طور پر مختلف ٹکڑوں میں کاٹ کر نچلے عہدے کے اہلکاروں کو دیا جاتا ہے۔ لندن میں سواس یونیورسٹی میں اسلامی آرٹ کے مورخ ڈاکٹر سائمن او میارا کہتے ہیں کہ کسوہ مذہبی لحاظ سے مقدس نہیں، تاہم مسلم دنیا میں اس کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کعبے کی عمارت پر بالکل ایک بادشاہ کے لباس کی طرح ہے۔ ایک بار جب کسوہ کعبے سے اتر جائے تو اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی، آپ اس پر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ دوسری طرف مصنف احمد الحلابی امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری کردہ خط و کتابت میں مذکور حصوں کی صداقت پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر مسلمز کو کسوہ تحفے میں دینے کی اجازت نہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کی فائلز کے مطابق سن 2016 اور سن 2019 کے ابتدائی اوائل میں ایپسٹین اور احمدی کے درمیان مختلف موضوعات پر متعدد ای میلز کا تبادلہ ہوا۔ کچھ ای میلز میں باس یا ماسٹر کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں نیو یارک اور پیرس میں مختلف مقامات پر مل چکے تھے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے ڈاکیومنٹ جاری کیے گئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین نے احمدی کے ذریعے سعودی حکومت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ جولائی 2016 میں احمدی کے نام سے ایک ای میل سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ایپسٹین اور ایچ ای رفت نامی کسی شخص کے درمیان ملاقات کرانے کی کوشش کر رہی تھی، جو ایپسٹین کی کمپنی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کی جاری کردہ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ایپسٹین نے اگست 2016 میں احمدی نامی کسی شخص کو ای میل میں سعودی عرب کی تیل کی سرکاری کمپنی آرامکو کی پبلک لسٹنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بعد میں احمدی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ وہ اس کا جائزہ لیں گی اور جواب میں کسی رفعت الصباح کا ای میل ایڈریس کاپی کرتی ہیں۔ سن 2016 میں نومبر کے مہینے میں ایپسٹین کے ایک اسسٹنٹ کے اکاؤنٹ سے ای میل میں کہا گیا کہ عزیزہ ہی رفعت کی اسسٹنٹ ہیں۔ مختلف لوگوں کو بھیجی گئی متعدد ای میلز میں ایپسٹین کی جانب سے رفعت الصباح کو سعودی ولی عہد کے مشیر کے طور پر بیان کرتے دیکھا گیا۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی کی طرف سے سن 2017 کی ریلیز میں انہیں شاہی عدالت میں مشیر کے طور پر نامزد کیا گیا۔ امریکی محکمہ انصاف کی فائلز میں موجود ای میلز کے مطابق صباغ نامی کوئی شخص ایپسٹین کے ساتھ اکثر
खत व किताबत करता नजर आता है। सन 2016 के एक टेक्स्ट मैसेज में रफ़तुल सबाह के नाम से एक अकाउंट की जानिब से एप्स्टीन को लिखा गया कि मैं आपकी दोस्ती को पसंद करता हूँ। रफ़तुल सबाह के नाम से एप्स्टीन को एक ईमेल में एक ऐसी खबर का लिंक भेजा गया जिसमें एक 17 साला रूसी ब्यूटी क्वीन मुबैना तौर पर दुबई गई ताकि अपने कुंवारेपन को फरोख्त कर सके, जिसके जवाब में पीडोफाइल जेफरी एप्स्टीन ने लिखा कि आखिर आपने मुझे कुछ काबिल कदर चीज़ भेजी। दूसरी तरफ इन फाइल्स में खुद अहमदी के बारे में मालूमात महदूद हैं, लेकिन सितंबर 2018 की एक ईमेल में इस नाम का कोई शख्स एप्स्टीन से अपनी मोबाइल गेम कंपनी के बारे में मशवरा मांगता दिखाई देता है। किस्वा और ईमेल्स में जिन लोगों का हवाला दिया गया है उनके एप्स्टीन से ताल्लुकात पर बहुत से सवालात हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया में सऊदी हुक्काम से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा बढ़ रहा है। सामीन, माह रमजान में दुनिया भर के मुसलमान गरूब आफ्ताब पर खजूर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। ये अमल न सिर्फ इस्लामी रिवायत से जुड़ा है बल्कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। माहिर ग़िज़ाइयत शहनाज बशीर के मुताबिक तवील वक्त तक भूखा रहने के बाद जिस्म को फौरी तवानाई की ज़रूरत होती है और खजूर कुदरती मिठास यानी ग्लूकोज से भरपूर होने के बायस खून में शुगर की सतह तेज़ी से बहाल करती है। इसमें सादा और पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स दोनों मौजूद होते हैं जो फौरी और देर पा तवानाई फराहम करते हैं। खजूर विटामिन A, B6 और आयरन से भरपूर है, जबकि इसमें मौजूद पोटाशियम जिस्म में पानी की मिकदार बरकरार रखने में मदद देता है। इसीलिए खजूर और पानी के साथ इफ्तार करना जिस्म को मुतवाज़न अंदाज में बहाल करता है। मजीद बरा खजूर फाइबर का बेहतरीन जरिया भी है जो हाजमा बेहतर बनाती और कब्ज से बचाती है। इफ्तार में पहले चंद खजूरें खाने से ज़्यादा खाने की ख्वाहिश भी कम हो सकती है, जिससे वज़न मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है। अगर किसी को खजूर पसंद ना हो तो वह मुख्तलिफ इकसाम आजमा सकता है या इसे दूध और दही के साथ स्मूथी बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक खजूर इफ्तार के लिए एक मुकम्मल और कुदरती ग़िज़ा है जो जिस्म को फौरी ताकत और ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान जंग के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए हैं। जिनीवा में ये मुज़ाकरात मंगल को रात देर तक जारी रहे, लेकिन बुध को बातचीत सिर्फ 2 घंटे जारी रही। अगरचे अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ इस बातचीत के हवाले से काफ़ी पुरउम्मीद थे, ताहम रूस और यूक्रेन दोनों ने ये इशारा दिया कि ये मुज़ाकरात मुश्किल रहे। रूस और यूक्रेन 4 साल से जारी इस तनाज़ा में मुमकिन जंग बंदी की शराइत से बहुत दूर नजर आए। इसके बावजूद रूस के मुज़ाकरातकार ने कहा कि एक और मुलाकात जल्द होगी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी फरीकों के मौक़िफ़ में फ़र्क की वजह से मुज़ाकरात को मुश्किल करार दिया है। मुज़ाकरात के इख्तिताम के ऐलान से कुछ देर पहले ज़ेलेंस्की ने रूस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुज़ाकरात को तूल देने की कोशिश कर रहा है जो पहले ही आखिरी मरहले तक पहुंच सकते थे। याद रहे कि रूस और यूक्रेन के वफूद की आखिरी मुलाकात जनवरी में अबू धाबी में अमेरिका की सालसी में हुई थी, जिसके बाद कई महीनों में पहली बार दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों का तबादला हुआ था।